Very good morning, students. Today we are going to discuss about the alkynes in hydrocarbon chapter. Let's see the introduction of alkynes. Alkynes have triple bond between carbon and carbon. Okay. Let's see the first member of alkyne. 1, 2, and 3. One bond is left here. One bond is left here. This is satisfied by H. Okay. Now it has two carbons. That's why we will take the name it. And for this triple bond, we will use the word ethine, like propyne. Let's see 1, 2, and 3 and 1, 4. 1, 2, 3 and 1, 4. यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है. ठीक है. This is prop, p carbon prop, and for this triple bond we will use the word ine, propyne. Let's see. This is butane, and for this it has this triple bond is present on the first carbon, that will be used butane. Okay. If there is a change in the position of this triple bond, then its name will be changed according to that. And these are the isomers. Suppose I have written like this. This is also the butane, but triple bond is present at second carbon. That's why we will write butane. This is butane. Okay. This is the position isomer. Butane and butane, these are the position isomers because there is a change in the position of triple bond. यहाँ पे triple bond की position change हुई है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? Position isomer. ठीक है. Next is the structural isomers. Sorry, chain isomer. Chain isomer can also be shown by this alkynes. Chain isomers. Like suppose I have 4 carbon, 1, 2, and 3. Here I have taken a triple bond. Sorry, I have taken pentyne. ठीक है. I have taken pentyne. 1, 2, and 3, and 4, and 5. ठीक है. हाइड्रोजन सेटिस्फाइड कर लेंगे यहाँ पर आप. ठीक है. This is pentyne. I have taken the 4 carbon here. This is n-pentyne. I suppose next I have taken the position of this triple bonds remain the same, but number of carbon chain in the principal carbon chain will be different. Suppose I have taken 5 carbon. There is total 5 carbon, but I have taken the 4 carbon in straight chain and 1 carbon in side. Okay, students, this is 1, 2, and 3, 3 methyl. 3 methyl butane. Okay, or you can say isobutane. Is it clear to all? ठीक है. ये दो isomers यानी कि alkynes can show position isomer और chain isomer. Position isomer में triple bond की जो position होगी वो differ करेगी, but chain isomer में जो total number of carbon है in principal chain that will be different. ठीक है. Suppose here it has 5 carbon in main chain, but here 4 carbon in main chain and 1 carbon is inside. Okay, understood? तो अगर हम बात करें alkynes में कि यहाँ जो ये सिंगल बॉन्ड है, that is sigma bond, this is a sigma bond. But यहाँ जो bonds present है triple bond, इसमें how many sigma and how many pi bonds are here? It has 1 sigma and 2 pi. ठीक है. If there is a triple bond, sigma single bond होता है हमेशा sigma bond. ठीक है. But if there is a single bond, triple bond present here, तो it has
इथाइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी सिग्मा एंड कार्बन्स आर प्रेजेंट इन एसिटिलीन, तो दे आर 3 सिग्मा एंड 2 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन एसिटिलीन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम पेंटाइन्स का इंट्रोडक्शन, सॉरी एल्काइन्स का इंट्रोडक्शन हुआ। अब मैं आपको एल्काइन्स को बनाना सिखाती हूं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन्स। Now see the preparation of alkynes. There is a very limited types of preparation. We can prepare methods by which we can prepare the alkynes. They are limited. In NCERT there are only 2 methods given. First from calcium carbide and second from vicinal dihalides. Let's see here. First from calcium carbides. First of all we have to prepare the carbides. बनाना पड़ेगा हमें। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से करा दीजिए कोर से, देन इट विल प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बाइड CaC2. दिस इज कैल्शियम कार्बाइड एंड it is carbon monoxide. Now this calcium carbides undergo hydrolysis and increase reacts with water and produce calcium hydroxide and release alkynes यानी कि इथाइन गैस। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर इथाइन की प्रिपरेशन के लिए, बाकी सब पे अप्लाई नहीं होगा। दिस इज इथाइन, ठीक है, इसे एसिटिलीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर द इथाइन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। लेट्स सी विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होता है। जब आप दो कंसेक्यूटिव कार्बन्स पर हैलोजन्स लगा होता है, देन इट इज नोन एज विसिनल डाइहैलाइड्स। सपोज आई हैव टेकन 1 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है, इसमें हम क्या डालेंगे, अल्कोहलिक KOH डाल दीजिए। व्हाट विल हैपन इज अल्कोहलिक KOH क्या निकालता है, HBr को रिमूव कर देगा, H यहां से Br यहां से, यानी ये मींस यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, देखिएगा यहां से H है और यहां से Br, यहां से H है और यहां से Br है, तो ये वाला बॉन्ड फ्री हुआ, यहां से बॉन्ड फ्री हुआ, तो इट विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला स्टेप जो आप बताने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, NaNH2 डालते हैं। ठीक है, जब हम NaNH2 डालते हैं तो ये क्या करेगा, यहां से इस Na और Br रिमूव हो जाएगा, NaBr। अब क्या होगा, यहां से ये H और यहाँ का NH2 बना के निकल जाएगा, अमोनिया मींस क्या निकल गया यहाँ से NaBr, और क्या रिमूव हुआ, NH3, ये रिमूव हुए, रिमूव का साइन होता है क्योंकि माइनस लगा दीजिए। ठीक है, और ये रिमूव हो गए यहाँ से, मींस यहाँ से Br चला गया है, यहाँ से H चला गया है, तो नाउ अगेन इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस। ठीक है, इथाइन विल प्रोड्यूस। इन दिस मेथड, फ्रॉम दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर द हाइड्रोकेट्स आल्सो, जैसे प्रोपाइन बना सकते हैं, या खुद से बनाएंगे यहाँ पर CH3CH। इससे आप प्रोपाइन खुद से बनाएंगे। ठीक है, इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर द एल्काइन्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन्स। देखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट 3 मेंबर है वो गैस है, 4 to 8 जो मेंबर है वो लिक्विड है, और जो हायर मेंबर्स है वो सब सॉलिड है। ठीक है, जनरली जो एल्काइन्स है वो कलरलेस है, ओडरलेस है, एक्सेप्ट इथाइन को छोड़ के। इथाइन हैज अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल and rest all the members are odorless and colorless. They are immiscible in water, पानी में dissolve नहीं होते हैं, but they are soluble in organic solvent like benzene, ether, phenol, etc. अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी बेटा जो इनकी डेंसिटी होती है पानी से कम डेंसिटी होती है, they are lighter than water। ठीक है, बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ेंगे तो मास भी बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो मास डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इट मींस मास बढ़ेगा when the mass of a compound will increase, density will also increase. It means you can say with the increase in carbon chain, or you can say with the increase in number of carbon atom, density of the compounds will, alkanes will increase. So these are the physical properties
ये कुछ रिएक्शंस हैं जो क्या शो कर रहे हैं, एल्काइन शो कर रहे हैं। चलिए एक हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की। एसिड्स क्या होते हैं, जो अपना H लूज कर लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, एसिड। ठीक है, अगर मैं ऐसा देखा गया है, क्योंकि अगर हम इथाइन में अगर हम क्या डालते हैं, सोडियम, तो यहाँ ये इस H को लूज कर देता है एंड इट विल फॉर्म सोडियम एसिटाइड बना लेता है एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड हाइड्रोजन लूज कर रहा है इट इज इक्वल टू एसिडिक कैरेक्टर। अब इथाइन ने सोडियम के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम एसिटाइड बनाया एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, दैट्स व्हाई इट इज एसिडिक इन नेचर। इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, जैसे एक और केस में आपको बता दें कि प्रोपाइन का मुझे शुरू करना है कि प्रोपाइन इज एसिडिक इन नेचर। तो मैं क्या करूंगी, इसमें मैं या तो सोडियम डालूंगी या NH2। ठीक है, ये यहाँ से ये वाला H हमेशा ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जो फर्स्ट वाला H होता है वो ये रिप्लेस होगा, वो कोई H रिप्लेस नहीं होंगे। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये Na यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला H NH2 के साथ रिलीज हो जाएगा अमोनिया बना के। इट मींस इट विल रिलीज अमोनिया, NH3 रिलीज हो जाएगा एंड प्रोड्यूस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज सोडियम प्रोपेलाइड। ठीक है, इस तरीके से these are the reaction that show the acidic nature of alkynes। अगर मैं बात करूं एल्काइंस पे, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं एल्काइंस, क्योंकि उनकी हाइड्राइजेशन क्या होती है, sp। ठीक है, उससे कम कौन होते हैं, एल्कीन्स, और सबसे कम कौन होते हैं, एल्केन्स। अगर आपको कंपैरिजन करने के लिए आया कि अनीश होते हैं एसिडिक कैरेक्टर, उसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्कीन एल्कीन एल्काइंस हो, तो सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा, एल्काइंस, उससे कम एल्कीन्स और सबसे कम एल्केन्स। मींस कार्बन सेम होना चाहिए। अगर हम सेकंड बोलते हैं कंसेप्ट, तो अगर मैं आपके पास लेती हूं ये सबसे ज्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है, उससे कम एसिडिक कौन मिलेगा, उससे कम एसिडिक ये रहेगा। मींस आप क्या कह सकते हैं, जैसे कार्बन चेन बढ़ रही है उसकी एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और उससे भी सबसे कम एसिडिक कौन रहेगा, देखिएगा इसके पास तो H है कि नहीं, वो ही H लूज होता है जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाले के कार्बन के पास H नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट विल नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ये वाले H कभी नहीं जाएंगे, हमेशा कौन सा H रिलीज हो सकता है, जो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए H सबसे कम लीस्ट एसिडिक रहेगा। तो in this way these are the some points we can discuss about the acidic character of alkynes. Now addition reactions. Let's see the addition reaction. Suppose I have taken ethyne and I have to add the hydrogen. Hydrogen can be added in the presence of nickel or platinum. ठीक है, तो one of the double bond will break from triple bond will break from here and one of the hydrogen will add here and one will add here. So it will form, it has only one hydrogen, ठीक है, तो one will come here and one will come here, it will
once again, and one of the will come here, another will come here, and it will form and its name will be 1, 1, 2, 2, tetra, bromo, propane. Understood students? तो ये देखिएगा 1, 1, 2, 2 कितने ब्रोमीन हुए 4 1, 1, 2 टेट्रा ब्रोमो and 1, 2, 3 propane. So in this way we can add the hydrogen and halogen. Now I am going to explain the HX. Let's see. Suppose I am taken HCl, okay. So one of the bond will break and HCl will add. Cl will go to that carbon atom which have lesser number of hydrogen, or you can say which is more alkylated. देखिए कैसे, तो this bond will break, यहाँ डबल बॉन्ड बैठ जाएगा, तो इस तरीके से ब्रेक हो गया, Cl यहाँ जाएगा और ये H यहाँ जाएगा. It means it will change into CH. ओके, अगेन फिर से हम HCl ऐड करेंगे इसमें. तो यहाँ पे देखिएगा Cl कहाँ जाएगा, Cl यहाँ जाएगा और H यहाँ जाएगा, and it will form यानी कि 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन. अंडरस्टूड? इस तरीके से हमने देखा कि हाइड्रोजन कैसे ऐड कर सकते हैं, हाइड्रोजन कैसे ऐड कर सकते हैं और हाइड्रोजन हैलाइड कैसे ऐड कर सकते हैं. ओके, अब मैं आपको वाटर ऐड करना सिखाती हूँ. देखिएगा क्या होता है बेटा, जब वी ऐड द वाटर इन दैट, ठीक है, तो वी विल टेक HgSO4, H2SO4 और हीट करेंगे, देन वाटर विल ऐड ओनली इन दिस प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4. ओके, ये रिएक्शंस काफी बार 12th में भी आने वाले हैं, इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा. यहाँ कोई पर्टिकुलर नहीं होता है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, वाटर को ब्रेक करेंगे. वाटर क्या होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, एक तरफ H जाएगा और एक तरफ OH चला जाएगा. तो इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है. ओके, तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे H भेजते हैं, यहाँ पे OH भेजते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाता है. तो फिर यहाँ से फिर से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यहाँ का एक H इसके पास चला जाएगा और यहाँ से क्या रह जाएगा O, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है. एक्चुअली इस तरीके का होता है फ्लैटनेस, ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पे चारों बैलेंसेस सेटिस्फाइड हो जाती है कार्बन की. अगर मैं आपको दिस इज द गेम इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपेन, दिस इज प्रोपाइन. प्रोपाइन से प्रोपेनॉन कैसे बनता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार आती है. हम वी विल ऐड द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 and H2SO4 and we will heat this, ठीक है. यहाँ पे सेम रिएक्शन होना है, O यहाँ जाएगा क्योंकि और H यहाँ जाएगा, ठीक है. सिंपल सी बात है, यहाँ पे O भेज दीजिए क्योंकि ये दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, और इसके भी दो बॉन्ड ब्रेक, ठीक. तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे. इसे मैंने तोड़ने के लिए बताया आपको. तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे CH3 CO यहाँ चला गया और H यहाँ चले गए. तो दिस इज प्रोपाइन. प्रोपाइन से प्रोपेनॉन, ये रिएक्शन काफी बार आती है.
पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। सपोज आई हैव टेकन, ठीक है, आई हैव टेकन 1,3 डाई आयन, ठीक है, इसका पॉलीमराइजेशन जब होता है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ओपन हो गया, ये दोनों आपस में एड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो सपोज आई हैव टेकन n molecules, हियर n molecules, पॉलीमर बन के तैयार हो जाएगा आपका। इस तरीके से हम पॉलीमराइजेशन कर सकते हैं। पॉलीमराइजेशन एक और तरीके से यहाँ होता है एरोमेटिक, जिसे बोलते हैं साइक्लिक एरोमेटाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से देखिएगा, आई हैव टेकन सपोज 3 molecules of ethyl, 1 2 and this is, ठीक है। अगर आप इसमें यहाँ लिख दीजिए एरोमेटाइजेशन in the presence of Fe रेड कोट, ठीक है, आरएन को रेड कोट कर देंगे और उसमें इथाइल गैस पास कर देंगे, तो इट विल चेंज इनटू बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्या होता है, हाफ होने पे CH होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लाइक दिस, ठीक है। हुआ कैसे है, देखिए यहाँ से कोई बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, हो गया। इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, इस तरीके से आपकी बेंजीन बनके तैयार हो जाती है। तो आप इसको सिंपल दिखाएंगे, आपको सिंपल ही दिखाना है बिल्कुल। ठीक है, you have taken the 3 molecules of ethyl, when this ethyl will taken in the presence of red hot iron, it will change into benzene. Again, this is a very important reaction. बेंजीन को आप इस तरीके से दिखा